وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام امور کا جائزہ اجلاس، ملک میں آئی ٹی کے فروغ کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت، آئی ٹی کے فروغ اور برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم اپریل 2026 میں اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے 3.5 ارب ڈالرز کی ترسیلات زر موصول ہوئی۔ جولائی تا اپریل مالی سال 2026 کے دوران مجموعی ترسیلات زر 33.9 ارب ڈالر رہیں۔ ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 11.4% اضافہ ریکارڈ۔ سعودی عرب سے سب سے زیادہ 841.7 ملین ڈالرز کی ترسیلات زر موصول ہوئیں۔ امریکی صدر نے ایران کی جانب سے پیش کردہ جواب مسترد کر دیا۔ جنگ بندی سے متعلق امریکی تجویز پر ایرانی نمائندوں کا جواب پڑھ لیا ہے۔ ایران کا جواب قابل قبول نہیں، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر پیغام۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں یورپی ممالک کے جنگی بحری جہاز تعینات کرنے کے کسی بھی اقدام پر فیصلہ کن اور فوری رد عمل کی دھمکی دے دی۔ جنگ ہو یا امن، آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی قائم رکھنے کا اختیار صرف اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس ہے۔ تہران کسی بھی دوسرے ملک کو اس معاملے میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا سوشل میڈیا پر بیان۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی توانائی منڈیاں شدید دباؤ کا شکار۔ ایشیائی تجارت کے آغاز پر برنٹ خام تیل کی قیمت 5% اضافے کے بعد 99.95 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت بھی 4% سے زائد اضافے کے ساتھ 105 ڈالر فی بیرل سے اوپر چلی گئی۔ بنیان مرصوص، ہم ہیں بنیان مرصوص، ہمیشہ تیار، بنیان مرصوص، ہم ہیں بنیان مرصوص، بنیان مرصوص، ہمیشہ تیار ہیں ہم، حق کا علم حیدر کی تلوار ہے ہم۔ مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار فتح، تاریخ کا روشن باب۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پوری قوم نے مسلح افواج کے شانہ بشانہ سیسا پلائی دیوار بن کر تاریخ رقم کر دی۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر پروقار تقریب، ناقابل تسخیر دفاع، قومی اتحاد اور بھرپور یکجہتی کا شاندار مظاہرہ۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ سروسز چیف، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، دوست ملکوں کے سفیر اور ارکان پارلیمنٹ تقریب میں موجود۔ شہداء غازیوں کو شاندار خراج عقیدت۔ قوم مارکہ حق کی تاریخی فتح پر پرجوش۔ کراچی سے خیبر تک شاندار تقاریب اور ریلیاں۔ پاکستان سے جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ پاکستان ہمیشہ امن کا دائی، مسلح افواج جاریت سے نمٹنے اور ملکی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر لمحہ تیار۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے اپنی مہارت ثابت کر دی۔ پانی ہمارے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے، آبی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ بھارت کو کشمیری عوام کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق حق ارادیت دینا ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری کا اسلام آباد میں مارکہ حق کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ مارکہ حق، پاکستان کے سچ کے بیانیے کی فتح۔ مسلح افواج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے دشمن کو تاریخی سبق سکھایا۔ ہمارے شاہینوں کی جرت اور فتح میزائل کے نشانے نے دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا۔ دشمن کو ایسا جواب دیا کہ اسے جان کے لالے پڑ گئے۔ جنگ بندی کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا۔ مادر وطن کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ پاکستان نہتے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مارکہ حق کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ 10 مئی کو یوم مارکہ حق سے منسوب کرنے کا اعلان۔
پاکستان کی سفارتی کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان 47 سال بعد براہ راست مذاکرات ہوئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ مذاکراتی عمل کے لیے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعظم ذوالفقار و عزب کی وہ ضرب بن کے آ گئے۔ تو یاد رکھی، تو یاد رکھی، تو یاد رکھی، تو یاد رکھی، میری ایک ضرب کو یاد رکھی، یاد رکھی، میں پاکستان ہوں، یاد رکھی، میں پاکستان ہوں، یاد رکھی۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل، ISPR کا نیا ملی نغمہ تو یاد رکھی جاری۔ نئے نغمے نے عوام کے دل جیت لیے۔ نغمے نے قوم میں بلبلہ اور فخر کا نیا جذبہ پیدا کر دیا۔ ایک طرف ایمان جو دیوار ہے بنا ہوا، ظلمتوں کی سوچ پہ وار بن کے آ گئے، اس جہاں میں امن کے سالار بن کے آ گئے۔ تو سن میری للکار ہے، یہ قوم کی پکار ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں بدلے کے منصوبے کا جائزہ۔ وفاقی وزیر کو فیوژن سینٹر اور جدید کنٹرول روم کے قیام پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ کی سیف سٹی دوسرے مرحلے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کنٹرول روم کو جدید تقاضوں اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنایا جائے، محسن نقوی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کا گوادر بندرگاہ کے لیے بڑے اقدام کا اعلان۔ عالمی ٹرانزٹ ٹریفک بڑھانے کے لیے گوادر پورٹ پر ٹیرف میں نمایاں کمی کا فیصلہ۔ کنٹینر بردار جہازوں کی برتنگ فیس میں 25% اور انٹرنیشنل ٹرانس شپمنٹ کنٹینرز پر پورٹ چارجز میں 40% کمی۔ ٹرانزٹ کنٹینر کارگو پر پورٹ چارجز بھی 31% تک کم۔ جنرل کارگو کے لیے 1 ماہ مفت اسٹوریج سہولت متعارف۔ نئے ٹیرف سے شپنگ لائنز کے آپریشنل اخراجات میں نمایاں کمی متوقع۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی بارے کے چیئرمین جان تھارٹن سے ملاقات۔ ریکوڈک میں جاری سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ریکوڈک کاپر گولڈ منصوبے کی تکمیل کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ ریکوڈک پاکستانی معدنیات شعبے کے لیے فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ ریکوڈک سے سرمایہ کاری، روزگار اور ترقی کے مواقع بڑھیں گے، علی پرویز ملک۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا بارش سے متعلق الرٹ جاری۔ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ اسلام آباد، مری، راولپنڈی، لاہور، ملتان، سوات، پشاور، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری متوقع۔ خیبر پختونخوا کے بعض مقامات پر گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کا چوتھا دن، بنگلہ دیش کی دوسری اننگز میں برتری کے ساتھ بیٹنگ جاری۔ 2 کھلاڑی آؤٹ۔ پہلی اننگز میں بنگلہ دیش کے 413 رنز کے جواب میں پاکستان کی ٹیم 386 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ کرکٹ، آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ مچل مارش ون ڈے سیریز میں آسٹریلوی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا، دوسرا میچ 2 جون کو لاہور، جبکہ تیسرا اور آخری ون ڈے بھی 4 جون کو لاہور میں ہی ہوگا۔ بارسلونا نے 29ویں مرتبہ لا لیگا ٹائٹل جیت لیا۔ بارسلونا نے روایتی ریف ریال میڈرڈ کو 2-0 سے شکست دے کر 3 میچز قبل ہی ٹائٹل یقینی بنایا۔ چیمپئن شپ سٹینڈنگز پر بارسلونا کو نزدیک ترین حریف ریال میڈرڈ پر 14 پوائنٹس کی ناقابل تسخیر برتری حاصل۔ ٹائٹل جیتنے پر بارسلونا کے شائقین نے سڑکوں پر نکل کر بھرپور جشن منایا۔
और मोटरसाइकिल रोड रेसिंग चैंपियनशिप, स्पेन के जॉर्ज मार्टिन ने फ्रेंच ग्रां प्री अपने नाम कर ली। जॉर्ज मार्टिन ने मुकर्ररा लैप्स 41 मिनट और 18 सेकंड्स में मुकम्मल किए। मार्को बैरेकी 47 सेकंड्स के फर्क से दूसरे, जापानी राइडर IT एगोरा 874 सेकंड्स के फर्क से तीसरे नंबर पर रहे। जॉर्ज मार्टिन राइडर्स चैंपियनशिप में टीममेट मार्को बैरेकी से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे रह गए। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं उस्मा चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में IT के शोबे का फरोग और IT से मुतालिक बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के अमूर बारे जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है, जिससे भरपूर इस्तिफादा हासिल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत करते हुए आसान खिदमत की सहूलियात को सूबों में भी शुरू करने के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IT के शोबे में शहरी और देही इलाकों के दरमियान फ़र्क को कम करने के लिए सूबाई और ज़िलाई सतह पर हुकूमतों का ताउन हासिल किया जाए। इजलास को मुल्क में IT के फ़रोग के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर में घरेलू इंटरनेट कनेक्शंस की तादाद 2024 में 1.9 मिलियन थी, जो अब बढ़कर 2026 में 5.10 मिलियन हो गई है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान से 4.5 से 4.6 अरब डॉलर की IT बरामदात मुतवक्के हैं। इजलास को बताया गया कि हाल ही में पाकिस्तान में 5G सर्विसेज के लिए नीलामी की गई, जो कि इस हवाले से 2016 से अब तक होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नीलामी थी। इस ऑक्शन से पाकिस्तान को 509 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू हासिल हुआ, जबकि मसनूई जहानत के फ़रोग के हवाले से फरवरी 2027 में इंडस AI वीक का एहतमाम किया गया। इसकी तकरीबात 30 शहरों में मुनाकिद हुई। इंडस AI वीक में 100 से जायद बैनुल-अक़वामी मंदूबी ने शिरकत की और 77 पवेलियंस बनाए गए। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों और हेल्थ यूनिट्स को फाइबर कनेक्टिविटी फराहम कर दी गई है और इस्लामाबाद को फ्री इंटरनेट हॉटस्पॉट्स की फराहमी का काम आखिरी मरहले में है। सैदपुर मॉडल विलेज और फातिमा जिन्ना पार्क में ई-लर्निंग पॉड्स यानी इस हवाले से नस्ब किए जा रहे हैं। स्टेट बैंक के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक अप्रैल 2026 में मुल्क को 3.5 अरब अमरीकी डॉलर की तरसीलात ज़र मासूल हुई हैं, जिससे मुल्क की तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मरकजी बैंक ने बताया है कि तरसीलात में साल ब साल बुनियादों पर 11.4% इजाफा हुआ है। ये तरसीलात बुनियादी तौर पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से मौसूल हुई हैं, जो मुल्की मईशत के लिए अहम है। आदादोशुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर जुलाई ता अप्रैल माली साल 26 की मुद्दत में 33.9 अरब डॉलर की आमदनी हुई। गुज़श्ता बरस की इसी मुद्दत में 31.2 अरब डॉलर मौसूल हुए थे। सालाना बुनियाद पर तरसीलात ज़र में 11% इजाफा देखा गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह के दौरान पाकिस्तान को 33 अरब 86 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 8% ज़्यादा हैं। आदादोशुमार के मुताबिक अप्रैल में सबसे ज़्यादा 84 करोड़ 20 लाख डॉलर सऊदी अरब से मौसूल हुए, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने 73 करोड़ 50 लाख डॉलर वतन भेजे। इसी तरह बरतानिया से 56 करोड़ 40 लाख डॉलर और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से 32 करोड़ डॉलर्स का ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा गया। और अब आलमी मंजरनामे से अहम खबर आपको देते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर ईरान की जानिब से पेश करदा जवाब मुस्तरद कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ईरानी नुमाइंदों का जवाब पढ़ लिया है, जिसमें मैं मुतमईन नहीं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे और उनका अफसुदा यूरेनियम भी हासिल करेंगे। सदर ट्रंप का यह पहला रद्दअमल है जो ईरान की जानिब से अमरीकी तजवीज़ का जवाब देने के बाद सामने आया है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में यूरोपीय ममालिक के जंगी बहरी जहाज तैनात करने के किसी भी इकदाम पर फैसलाकुन और फौरी रद्दअमल की धमकी दे दी है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने
सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि जंग हो या अमन, आपनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी कायम रखने का इख्तियार सिर्फ इस्लामी जमहूरिया ईरान के पास है और तेहरान किसी भी दूसरे मुल्क को इस मामले में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। आपनाए हुर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में शुमार होती है जहाँ से आलमी तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है, इसलिए इस इलाके में बढ़ती हुई कशीदगी आलमी मईशत और तवानाई की मंडियों के लिए भी तशवीश का बायस बन रही है। बरतानिया और फ्रांस कल 40 से जायद ममालिक के वज़रा दिफा का अहम इजलास करेंगे, जिसमें आपनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत और बहरी रास्तों की बहाली के लिए फौजी मंसूबों पर गौर होगा। ये ऐलान ईरान की उस वार्निंग के बाद सामने आया है जिसमें लंदन और पेरिस को खित्ते में जंगी जहाज भेजने से खबरदार किया गया था। दूसरी जानिब ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि बरतानिया, फ्रांस या किसी भी मुल्क के जंगी जहाज़ों को फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि दुश्मन जंग में नाकामी के बाद मुआशी जंग छिड़ना चाहता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा कि मुल्क में तवानाई के इस्तेमाल में किफ़ायतशारी को फ़रोग देना ज़रूरी है। मुल्क को इस वक्त तवानाई के मसले पर काबू पाने के लिए बचत की ज़रूरत है। अवाम को चाहिए कि वो दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करें। और बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी तवानाई मंडियां शदीद दबाव का शिकार हो गई हैं। एशियाई तिजारत के आगाज पर ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन 5% इजाफे के बाद $99.95 फी बैरल तक पहुंच गई, जबकि अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत भी 4% से ज्यादा इजाफे के साथ $105 फी बैरल से ऊपर चली गई है। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों को खदशा है कि आपने हुर्मुज़ में जारी कशीदगी के बायस आलमी तेल की सप्लाई मजीद मुतासिर हो सकती है। कुछ कौमी खबरों में आपको बताते हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इजलास में सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने और फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क़याम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सेफ सिटी मंसूबे के लिए तमाम ज़रूरी आलात फ्राहम तनसीब का अमल जारी है। डिजिटल सिस्टम को 30 मई तक ऑपरेशनल किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाने और मुकर्ररा वक्त में काम मुकम्मल करने की हिदायत की। नेशनल स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के वफ्द ने वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से मुलाकात की। मुलाकात में स्टील और इंजीनियरिंग शोबे को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफ्द ने EPZ से आने वाली मसनूआत पर ड्यूटी निज़ाम में इस्लाहात की तजवीज़ दे दी। जाम कमाल खान ने सनती शोबे के तहफ़्फ़ुज़ और वैल्यू एडिशन की हुकूमती हिमायत का इआदा किया। वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि हुकूमत सनतकारों के तजर्बात और तजावीज़ को अहमियत देती है और पॉलिसी साजी को सनती हक़ाइक़ से हम आहंग होना चाहिए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से बायर कंपनी के चेयरमैन जॉन थॉर्नटन ने मुलाकात की। गुफ्तगू में रैकोडिक कॉपर गोल्ड मंसूबे की तकमील के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि रेकोडेक पाकिस्तानी मादनियात के शोबे के लिए फ्लैगशिप मंसूबा है, जिससे सरमायाकारी, रोजगार और तरक्की के मौके बढ़ेंगे। चेयरमैन बैरक कंपनी ने रेकोडेक मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए अपने अज़्म का इज़हार किया। पाकिस्तान के ज़राई शोबे में जदत, सरमायाकारी और पैदावारी सलाहियत के जरिए खित्ते में अपनी मजबूत और मुस्तहकम शनाख्त कायम कर रहा है। आलमी इवेंट एग्री एशिया का लाहौर में आगाज हो गया है, जिसमें 400 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान, 35,000 से ज़ायद तजारती शुरका, 3,000 से ज़ायद किसानों समेत तहकीकाती इदारों ने शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राई ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम मफ़ाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए, जबकि कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स, एग्री प्रोसेसिंग और लाइफ स्टॉक सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सरकारी हज स्कीम के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज की सऊदी अरब आमद का सिलसिला तेज़ी से जारी है। अब तक 61,147 से ज़ायद आज़मीन हजाज़ मुक़द्दस पहुँच चुके हैं, जो मजमूई सरकारी आज़मीन का 51% से ज़ायद बनते हैं। 34 रोज़ा हज फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान अब तक 244 प्रवासी ऑपरेट की जा चुकी हैं, जबकि मज़ीद 224 प्रवासी बाकी हैं। मक्का मुकरमा में इस वक्त 56,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन क़याम पसीर हैं, जबकि मदीना मुनव्वरा से 30,000 से ज़ायद हुज्जाज मक्का पहुंच चुके हैं। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक पाकिस्तानी हुज्जाज की खिदमत के लिए 1288 मुआवनीन हज तैनात हैं, जबकि आखिरी हज परवास 21 मई को पाकिस्तान से रवाना होगी। हज के मुकद्दस सफ़र में पाकिस्तानी आज़मीन को अपने अहल खाना से राब्ते में रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी सिमों की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसील जानते हैं मक्का मुकरमा में हज कवरेज के लिए मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ।
मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी आज़मीन हज को मवासलाती सहूलतों की फराहमी के लिए खसूसी इक़दामात किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत मज़हबी उमूर और पाकिस्तान हज मिशन के ताउन से आज़मीन में खसूसी सिमें तकसीम की जा रही हैं। सिम में 2 प्रीपेड पैकेजेस अपलोडेड होते हैं। एक लॉन्ग वालों के लिए 45 डेज़ का पैकेज है, उसमें 600 फ्लैक्स मिनट्स हैं और इसमें 40 GB जो है वो डेटा है। दूसरा जो पैकेज है वो शॉर्ट पैकेज है, वो 30 डेज़ का है, उसमें 25 GB डेटा है और 300 मिनट्स हैं। आज़मीन हज ने वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से दी जाने वाली सिम पर इत्मीनान का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे आके सिमें मिल चुकी हैं, मुझे भी मिली है और मेरी मिसेस को भी मिली है। इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है और इसके सिग्नल भी अच्छे हैं, हरम में भी ठीक आ रहे हैं और होटल में भी ठीक आ रहे हैं। हर किसी को ई सिम मिल रही है, वक्तन फ़क्तन ये लोग आते हैं, ये नहीं कि एक ही दफ़ा आएंगे और आपको सिम दे देंगे, नहीं, अगर किसी को आज नहीं मिल सके तो कल आएंगे। नेट बेहतरीन है उसका और जो मिनट्स हैं वो भी ठीक हैं। सिम मिली है मदीना तैयबा में और उसमें तकरीबन नेट था 40 GB। ऐप के ज़रिए जो मैंने अपना चेक किया है उसमें तकरीबन 121 मिनट मेरे यूज़ हुए हैं और राउंड अबाउट कोई 10 GB के करीब डाटा जो है ना वो यूटिलाइज हुआ है। पाकिस्तान हज मिशन की कोशिश है कि आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए ताकि वो यकसुई के साथ इबादत अंजाम दे सकें। आज़मीन हज को जदीद सहूलियात की फराहमी हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत मज़हबी उमूर की हमेशा से तरजीह रही है। इसी हवाले से आज़मीन में जदीद मोबाइल सिम्स की तकसीम का अमल जारी है। मोहम्मद आसिफ, PTV न्यूज़, मक्कातुल मुकर्रमा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान ने दुश्मन को मौसर जवाब देकर अपनी दिफाई सलाहियत और पेशावराना महारत का लोहा मनवाया। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर रेलवे ने कहा कि पाक अफवाज की कुर्बानियों और बहादुरी के बायस आज पाकिस्तान दुनिया में इज्जत और वकार की अलामत बन चुका है। ट्रिब्यूट पेश करता हूं अपने फजाइया के उन शहीदों को जिन्होंने अपनी बाउंड्री में रहकर हिंदुस्तान के 8 जहाजों को नीस्त नाबूद करके फजाइया की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया के अंदर साबित की कि पाकिस्तान विनर है, पाकिस्तान के शाहीन विनर है, एयर चीफ विनर है, आर्मी चीफ विनर है, बहरिया का चीफ विनर है, पाकिस्तानी कौम विनर है और पाकिस्तान के वो जवान विनर है जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। बुलेटिन में शामिल मजीद अहम खबरें एक ब्रेक के बाद। हम हैं बुनियानुम मरसूस, हम हैं बुनियानुम मरसूस, हमेशा तैयार, बुनियानुम मरसूस, हम हैं बुनियानुम मरसूस, हमेशा तैयार है हम। हलचल मची थी मैदानों में, फजाओं में, बहरे बेकरार में उठी फिर एक ऐसी दीवार जो थी लाजवाब, दुश्मन की उठती गर्दन पर हैदर की तलवार। ये वो आखिरी हद थी जिसका बताया जाता रहा, ये वो कुव्वत का सरचश्मा था जिसका दुश्मन को गुमान भी ना था। ये वो अस्करी शिकस्त थी जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। होश आया तो देर बहुत हो चुकी थी। जो ललकार रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलबिला उठे थे, अपने ही अल्फाज के मलबे में दब चुके थे। हमने कहा था आजमाना मत, कीमत ना चुका पाओगे। उसे भी शौक था आजमाने का और हम तो पहले से तैयार थे। गुजर गया साल, टूट गया भरम, सच और हक भी आश्कार हुआ। जो किस्सा बनाना चाहते थे आज खुद का सिक्का बेमोल हुआ। हमारी उड़ानों को कोई सवाल नहीं, हमने साबित कर दिखाया। ये मट्टी आज भी सब बसता है, दुनिया को हमने समझा दिया। जो शौक हो फिर तो लौट आना, किस्सा जहन नशीन रखना, कदम जो रख लो इधर, वापसी के खत जला देना। दुरुस्त हर वक्त
बार-बार। वेलकम बैक। स्पेन में जश्न मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील के हवाले से तारीखी और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, कश्मीरी बरादरी और अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि अगर मुस्तकबिल में किसी किस्म की जारियत मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। पेरिस में मार्का हक की याद में एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक अफवाज की कुर्बानियों, पेशा वराना सलाहियतों और कौमी दिफा में तारीखी किरदार को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में पाकिस्तान के सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम मार्का हक की पहली सालगिरह के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सफ़ीर आदिल गिलानी ने खिताब में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों, कुर्बानियों और मुल्क के दिफा के लिए शोहदा की लाजवाल खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। मार्का हक के सिलसिले में पाकिस्तान काउंसलेट जद्दा में तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी के हर मकतबा फ़िक्र के अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो इस दिन अफवाज पाकिस्तान की यादगार फतह और अपने से 5 गुना बड़े मुल्क की अस्करियत को मुख्तसर वक्त में ही धूल चटाई, आइंदा वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से दोबारा न देख सके। तकरीब में मौजूद पाकिस्तानियों ने इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बहादुरी पर, उनकी दराज़ी उम्र और पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की के लिए दुआ की। सिंध के गवर्नर सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा है कि पाकिस्तान में नफरत, मजहबी तकसीम और तासुब की कोई जगह नहीं है। हम सिर्फ पाकिस्तानियत पर यकीन रखते हैं। दुश्मन अमन और इंसानियत की जुबान नहीं समझता, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अमन का अलमबरदार रहा है। कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब करते हुए सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा कि हमारी अफवाज ने हमेशा बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने टैबलोज पेश किए। तकरीब के इख्तिताम पर केक काटा गया और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड में मार्का हक की पहली सालगिरह के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें सियासी कारोबारी शख्सियात, कौंसलेट के हुक्काम, मीडिया नुमाइंदगान और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने शिरकत की। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे बरतानिया से अदीब मुश्ताक। कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड में मार्का हक की शानदार कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए कौंसल जनरल जाहिद खान जतोई ने कहा कि आज का ये इज्तिमा हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए है। उन्होंने कहा कि हमारी निडर अफवाज ने बेमिसाल हिम्मत और पेशा वराना महारत के साथ मुल्की परचम की लाज रखी। कौंसल जनरल ने समंदर पार पाकिस्तानियों के जज्बा हुब्बुल वतनी और यकजहती को भी खूब सराहा। मार्का हक इस तारीखी हकीकत की यादगार के तौर पर मनाया जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम अगर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन महकम कायम कर ले तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कुव्वत उसका कोई भी नुकसान उसको नहीं पहुंचा सकती। और एक सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन को वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि अपनी अदबी अक्सरियत के बावजूद वो हमें किसी किस्म की गजब न पहुंचा सका। इस मौका पर शुरका का कहना था कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान पाक फौज का जवाब न सिर्फ फौरी था बल्कि इंतहाई मौसर भी रहा, जिसने पूरी दुनिया पर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ मिलकर नाकाबिले तस्खीर है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल फतह ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी एक प्लेटफार्म पर ला खड़ा किया है। अदीब मुश्ताक, PTV न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि भारतीय जारियत के बावजूद पाकिस्तान ने सियासी, सिफारती और अस्करी पुख्तगी का मुजाहरा किया, जिससे आलमी सतह पर कौमी वकार में इजाफा हुआ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मार्का हक में हकायक और तदब्बुर की बुनियाद पर अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिससे मुल्क की साख मजबूत हुई। रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना जारियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होगा। अगर पाकिस्तान के पानी या सालमियत को खतरा लाहिक हुआ तो पाकिस्तान अपने हक़ दिफा का भरपूर इस्तेमाल करेगा। मार्का हक में अजीम कामयाबी पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन और न्यूयॉर्क में कौंसल खाने ने खुसूसी तकरीब का इन्नेकाद किया। इस तकरीब में दस्तावेजी फिल्म पेश की गई, जिसमें मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, पेशा वराना सलाहियत और कुर्बानियों को उजागर किया गया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के काउंसिल जनरल आमिर अहमद अतुज़ई ने कहा कि मार्का हक ने कौम के इत्तेहाद, इस्तकामत और अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को दुनिया के सामने नुमाया किया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने इलाकाई अमन, कसीरुल जहदी ताउन और बैनुल अक़वामी कानून के लिए पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया।
कनाडा के दारकूमत ओटावा में पाकिस्तान के हाई कमीशन और टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर में तीनों काउंसिल जनरल्स ने मार्का हक की पहली सालगिरह जोश व खरोश के साथ मनाई। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनक्किदा तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान और पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद ने शिरकत की। हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने अपने खिताब में मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और पेशा वराना महारत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मार्के हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर FC बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी, कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाईं और अहल खाना से यकजहती का इजहार किया। अफसरान और जवानों ने शोहदा के लिए फातिहा ख़्वानी की और मुल्क की खातिर अजीम कुर्बानियों पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मलीर गैरेजन कराची में वेपन एंड इक्विपमेंट डिस्प्ले का इनेकाद किया गया। नुमाइश में जदीद दिफाई साजो सामान और जदीद हथियार अवामी मुशाहिदे के लिए पेश किए गए। शुरका ने पाक फौज के ज़ेर इस्तेमाल जदीद दिफाई साजो सामान और हथियारों में गैर मामूली दिलचस्पी ली। शुरका ने मार्का हक को कौमी तारीख का रोशन बाब करार दिया और पाक फौज की पेशा वराना सलाहियत और मुल्की दिफा के आज़म को सराहा। आज़ाद कश्मीर बेबी मार्के हक के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया और रियासत गी रैलियों और सेमिनार का इनेकाद करके मुसल्लह अफवाज के साथ वालिहाना मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया गया। अदील अहमद खान इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। मार्का हक की याद में यादगार शहदा मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां कायम काम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग चिनार डिवीजन के हमरा परचम कुशाई की। कायम काम सदर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर का पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। कायम काम सदर आज़ाद कश्मीर ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग चिनार डिवीजन के हमरा यौम फतह मार्का हक के मौके पर पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम नूरुल स्टेडियम मुजफ्फराबाद में दिफाई साजो सामान की शानदार नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। सदर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने नुमाइश में लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया, जहां पाक फौज की जानब से जदीद दफाई साजो सामान, असलहा, मवासलाती निज़ाम, जंगी गाड़ियों और दीगर अस्करी आलात की नुमाइश की गई। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की वर्किंग कमेटी के ज़ेरे एहतमाम बुरहानवानी शहीद चौक से बुनियादुल मरसूस रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे, जिस पर पाकिस्तान की शानदार फतह पर तहनीती नारे दर्ज थे। मुजफ्फराबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम यादगार शहदा पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और शहदा के ईसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर LOC के करीब जलहाना सेक्टर में शानदार तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर परचम कुशाई भी की गई और तलबा ने मार्का हक के हवाले से टैबलोस, मिली नगमे और कौमी तराने पेश किए। शुरका ने बच्चों की बेहतरीन परफॉर्मेंस को सराहा। मुकर्रीन ने पाक फौज की जुर्रत और कामयाबी को खिराज तहसीन पेश किया और इस अज़्म को दोहराया कि कश्मीरी हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और पाक फौज के साथ शाना बशाना रहेंगे। हर वीर जवां यक दिल यक जान, हर फर्द यहाँ दिल शाद रहे। अल्लाह ताला ने बनियानन मरसूस में पाकिस्तान को जो फतह अता की है, आज हम LOC पॉइंट चलियाना पर उसका जश्न मनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं और बुज़दिल दुश्मन को ये बताना चाहते हैं कि अगर आइंदा उसने ऐसी जारियत की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं अपनी नादरे वतन के बहादुर बेटों और उनकी माओ को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ खड़ा है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज हम यहाँ LOC पे खड़े हैं, 1 साल का कामयाबी मना रहे हैं मार्का हक की। पाक फौज के साथ हम हमेशा खड़े हैं। आज मार्का हक की सालगिरह है, वो मार्का जिसने दुश्मन के गरूर को हाथ में मिला दिया और इसका सेहरा इस मुल्क के सिपा सालार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के सर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमने इससे पहले भी मोदी को इतनी शिकस्त दी है, इंशाअल्लाह ये मार्का हक जो 1 साल मुकम्मल हो गया है, इसके अगर मोदी ने फिर दोबारा पंगा किया तो इंशाअल्लाह इससे बुरा उसको अंजाम देना पड़ेगा। दुश्मन बुज़दिल ने हमारे रात के अंधेरे में हमला किया हमारे पाकिस्तान पर और पाक फौज ने उन्हें दिन की रोशनी में भरपूर जवाब दिया। हम इस मौके पे नरेंद्र मोदी को और अक़वाम मुत्तहिदा को ये बताना चाहते हैं, ये बावर करवाना चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के दिफा के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे।
श्रीनगर से कश्मीरी नौजवान का पाकिस्तान अस्करी और सियासी क़यादत के नाम जज्बाती पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो पैगाम में कश्मीरी नौजवान ने बुनियानुल मरसूस की पहली सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। कश्मीरी नौजवान का कहना था कि आज वो तारीखी दिन है जब पाकिस्तान ने भारत का गुरूर और तकब्बुर खाक में मिलाया था। बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाकिस्तान में जश्न और भारत में सोग का समा है। पूरा जम्मू कश्मीर पाक फौज की तरफ देख रहा है। हमें यकीन है कि आप हमें इन जालिमों से आज़ादी दिलवाएंगे। पाक फौज के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करने और शहदा व गाजियों की अजीम कुर्बानियों को याद रखने के लिए गिलगित के नवाही इलाके नौमल में मार्का हक के उन्वान से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान के मुहाफिज दुनिया भर में दुश्मनाना ने वतन के मुकाबले में सीसा पिलाई दीवार की मानद खड़े हैं। उनके जज्बे हुब्बुल वतनी की बदौलत मुल्क में भाईचारे, शुजात, गैरत और हमीयत और कौमी वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हुआ है। समंदरी में मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, शहरियों, नौजवानों और सहाफ़ी बिरादरी ने शिरकत की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाते हुए कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का इज़हार किया। रैली घंटा घर चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई इख्तिताम पजीर हुई। पीस मेकर्स कम्युनिटी का आगाज इंसाफ की फ्राहमी में एक नए बाब का इजाफा है। अब कानूनी पेचीदगियों की बजाय बाहमी इफ़ाम तफहीम से फैसलों की बुनियाद रखी जाएगी। इस्लामाबाद में मुनाकिदा तकरीब के अहवाल बता रही हैं मरियम मलिक। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90 से ज़ायद ममालिक में छोटे तनाज़ात अदालत नहीं बल्कि टेबल पर हल होते हैं। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान अब आलमी सफ में शामिल होने के लिए तैयार है। पीस मेकर्स कम्युनिटी का क़याम सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि निज़ाम इंसाफ में नई राहें खोलने और आसानी लाने की कोशिश है। तकरीब से खिताब में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालतें आखिरी रास्ता होनी चाहिए, पहला नहीं। हमें सोसाइटी में बाहमी गुफ्तगू और सुलह सफाई के फन को दोबारा जिंदा करना होगा। पीस मेकर्स कम्युनिटी इंसाफ की फराहमी में एक पुल का किरदार अदा करेगी। The numbers that were gathered by the Ministry of Law, the largest number of referrals to mediation have been in the province of Balochistan. The largest number of cases settled through the process of mediation has been in the province of Balochistan. International donors such as UNDP are concentrating on Balochistan. It is a struggle to tell them please come to the north as well, because just like certain areas in Gilgit-Baltistan, Balochistan is now the flag bearer as far as settling disputes through mediation are concerned. लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कानूनी पहलुओं पर बात करते हुए कहा कि बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान में सालिसी का चैंपियन बनकर उभरा है, जहां सबसे ज्यादा तनाज़ात अदालत से बाहर हल हुए। पाकिस्तान को एशिया का आर्बिट्रेशन हब बनाना अब महज एक ख्वाब नहीं बल्कि जरूरत है। to sit down with the other lawyers and mediate the matter. And fourth and most important is the legislative, the parliament, which are always there to support. You can see today, on the Saturday, today, the Supreme Court judge is sitting with you on this cause, the Attorney General is sitting with you, the Law Secretary is sitting with you. Everybody is sitting together because we all are Pakistani. पैनल डिस्कशन में इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान अब गैर फाल नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के 2025 के कवानीन में तरमीम हो या सूबाई सतह पर होने वाली पेशरफ्त, इकोसिस्टम अब कल्चर में बदल रहा है। पीस मेकर्स कम्युनिटी की सूरत में इंसाफ का वो जदीद मॉडल सामने आ गया है जहां तनाज़ात टेबल पर हल होंगे और माशरे में अमन की नई सकाफत परवान चढ़ेगी। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए AI और खुसूसी इक़दामात अली डार ने लाहौर एयरपोर्ट पर मक्का रोड इनिशिएटिव का दौरा किया और सऊदी हुकाम की दावत पर आज़मीने हुजाज से कराम को रुखसत किया। दौरे के मौके पर अली डार ने सऊदी हुकूमत की जानिब से मक्का रूट इनिशिएटिव को काबिल तहसीन इक़दाम करार देते हुए इस सहूलत को बदौलत आज़मीन हज सऊदी पर पहुँचने कर किसी रुकावट के बगैर सीधे अपने होटल रवाना हो जाते हैं और सामान भी बराह रास्त होटल्स तक पहुँचाया जाता है। मक्का रूट इनिशिएटिव सफ़र को आसान, मुनज़्ज़म और सहल बनाता है। उन्होंने कहा कि मक्का रूट इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन और बैगेज टैगिंग पाकिस्तान में ही मुकम्मल की जाती है। ये मिसाली सहूलत सफ़र हज को मज़ीद आसान और पुरसकून बनाती है।
پاکستان اور روس کے درمیان تعلیمی اور تحقیقی روابط کو فروغ دینے کے لیے کازان میں کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ کانفرنس 12 سے 17 مئی تک منعقد ہوگی۔ یہ کانفرنس مشترکہ طور پر کازان فیڈرل یونیورسٹی روس اور وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے۔ کانفرنس میں پاکستان، روس اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے اسکالرز، پالیسی ساز، سفارتکار اور محققین شرکت کریں گے۔ اور اب خبر دیتے ہیں آپ کو بھارت سے۔ پہلگام فالز فلیگ کی آڑ میں بہار کے بعد مغربی بنگال کے انتخابات میں بھی مودی نے منظم دھاندلی سے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ بھارتی جریدہ دیوار نے مودی کی جیت کے جشن کے پیچھے چھپی بدعنوانی اور منظم دھاندلی کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارتی جریدہ دیوار کے مطابق مغربی بنگال میں تقریباً 1 کروڑ افراد کے نام ووٹر لسٹ سے خارج کر کے حق رائے دہی سے محروم کر دیا گیا۔ محض تصادات کی بنیاد پر 27 لاکھ شہریوں کو خارج اور حتمی فہرست کے بعد 6 لاکھ ووٹرز کے اضافے نے سنگین سوالات اٹھا دیے۔ وزیر اعلیٰ مغربی بنگال کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کو مسلمانوں کو ویسا ہی سبق سکھانا چاہیے جیسا اسرائیل نے غزہ میں سکھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مسلمانوں کے لیے کام نہیں کروں گا جب تک وہ اپنا مذہب تبدیل نہ کر لیں۔ عالمی ماہرین کے مطابق ہندوتوا ایجنڈے کے فروغ کے لیے مودی نے 1.5 ارب آبادی والے ملک سے حق رائے دہی چھین لیا۔ افغانستان پر قابض طالبان رجیم اپنے ہی عوام کے اثاثوں پر قابض ہونے لگی ہے۔ افغان انٹرنیشنل کے مطابق صوبہ بدخشاں کے ضلع ارگو میں وسائل پر قبضے کے تنازع پر طالبان اور مقامی رہائشیوں میں جھڑپیں جاری ہیں۔ جھڑپوں کے دوران طالبان فورسز کی براہ راست فائرنگ سے 2 شہری جاں بحق ہوئے۔ احتجاج کی شدت میں مسلسل اضافہ ہونے کے باعث ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ طالبان رجیم نے اپنے وحشیانہ مظالم کو چھپانے کے لیے بدخشاں میں موبائل سروس معطل کر دی ہے۔ پنجاب حکومت کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے ڈیزل قیمت میں سبسڈی مہیا کر رہی ہے جو براہ راست ان کے کسان کارڈ اکاؤنٹس میں منتقل کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کریں گے کاشف منیر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے کسانوں کے لیے خصوصی مالی معاونت کی جا رہی ہے جس کا مقصد کاشتکاروں پر بڑھتے ہوئے اخراجات کا بوجھ کم کرنا ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے 25 ایکڑ تک راضی رکھنے والے کسانوں کو فی ایکڑ 10 لیٹر ڈیزل پر 150 روپے فی لیٹر سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے جو کسان کارڈ کے ذریعے براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو رہی ہے۔ یہ اقدام شفافیت اور سہولت کو یقینی بناتے ہوئے کسانوں کو فوری ریلیف فراہم کرنا ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا یہ بڑا ہی بہترین پروگرام ہے اور بڑا ہی اہم ان کا یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ان کا یہ قدم کہ انہوں نے کاشتکاروں کو 1500 روپے فی ایکڑ جو ہے وہ ڈیزل میں سبسڈائز کیا گیا ہے اور یہ سبسڈی اب تھرو آؤٹ جتنے بھی ہمارے کسان کارڈ ہولڈر ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے تقریباً 15,500 سے ابو ہمارے جو کاشتکار ہیں ان سب کو یہ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے پٹرول اور ڈیزل پر دی جانے والی یہ سبسڈی کو کسان دوست پالیسی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں ریلیف سے کاشت کے اخراجات کم ہوں گے اور پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے ہم کسان بھائیوں کے لیے جو ڈیزل کے اوپر سبسڈی دی گئی ہے اس سے ہمارے زرعی اخراجات بہت حد تک کم ہوئے ہیں۔ سی ایم پنجاب نے جڑا 1500 روپیہ ساڈے واسطے سبسڈی کا اعلان کیتا ہے ڈیزل دی مد چ اس نال ساڈے لئی بڑا فائدہ ہویا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے ڈیزل دی سبسڈی جڑی 1500 روپیہ فی ایکڑ کساناں واسطے تے ساڈے واسطے اعلان کیتا ہے۔ دے وچ ساڈے اخراجات گھٹ گئے نے، سانو بہت فائدہ ہویا۔ یہ سبسڈی نہ صرف زرعی لاگت میں کمی کا باعث بنے گی بلکہ کسانوں کے معاشی استحکام کو بھی مضبوط کرے گی جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر ملک کی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ کاشف منیر، پی ٹی وی نیوز، فیصل آباد۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرانوالہ، سرگودا، ملتان اور مری سمیت مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ پشاور، سوات، چترال، مانسیرہ، ایبٹ آباد اور ڈی آئی خان سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش اور ژالہ باری کا خدشہ ہے۔ مظفر آباد، نیلم ویلی، گلگت، سکردو
और हुंजा समेत तमाम अहम सियाहती इलाकों में भी बारिश मुतवक्के है। NDMA ने खबरदार किया है कि बढ़ते हुए दर्जे हरारत की वजह से ग्लेशियर्स और बर्फ पिघलने का अमल तेज हो सकता है, जिसके नतीजे में ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा है। पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेलें और लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, आंधी और ख़राब मौसम के दौरान महफूज मकामात पर रहें। तेज़ हवाओं और जलाबारी से सोलर पैनल्स, गाड़ियों और कमज़ोर तामीरात को नुकसान पहुँच सकता है, लिहाजा उनकी हिफाजत के इक़दाम करें। NDMA के मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारों और मकामी इंतज़ामिया को अलर्ट रहने और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। और नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान बालाई पंजाब, बालाई वस्ती खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर दरमियानी से तेज़ बारिश और जालाबारी की भी तवक्को है, जबकि सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब और कश्मीर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं ढाका टेस्ट के चौथे रोज बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 93 रन बनाए। मेजबान टीम को पाकिस्तान पर 120 रन की सबकत हासिल हो गई है। बारिश के बाइस खेल तातुल का शिकार है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मेजबान टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स 7 रन बगैर किसी नुकसान के दोबारा शुरू की तो महमूदुल हसन जॉय 5 और शादमुल सलाम 10 रन बनाकर आउट हुए। मोमिनुल हक 37 और कप्तान नजमुल हुसैन शांतु 34 रन के साथ नॉट आउट हैं। खेल के तीसरे रोज पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 386 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलवी टीम की क़यादत करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिश, मैथ्यू कैनमैन, मास लबुशेन, रैली मेरेडिथ, ओली पेक, मैथ्यू रेनशा, तनवीर सांगा, लियाम स्कॉट, मैथ्यू शॉट, बिली स्टैनलिक और एडम ज़ैम्पा शामिल हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी, दूसरा 2 जून को लाहौर, जबकि तीसरा और आखिरी वनडे मैच 4 जून को लाहौर में ही होगा। जलालपुर जटा क्रिकेट स्टेडियम में मार्का हक चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का इनेकाद किया गया। ज़िले इंतजामिया गुजरात के ज़ेर एहतमाम फाइनल मैच के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल ऐन ने कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफीज़ और नकद इनामात तकसीम किए, जबकि रनर अप टीम को भी हौसला अफजाई की गई। तकरीब में ज़िले इंतजामिया के अलावा स्पोर्ट्स हुक्काम समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। दिलचस्प मुकाबलों से शायकीन भी बड़ी तादाद में लुत्फानंदोज हुए। और अब कुछ बात करते हैं टोंक में यौम अज़्म व इस्तेहकाम और मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की पहली सालगिरह के मौके पर फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। नौजवान खिलाड़ियों और शायकीन ने भरपूर जोश और जज्बे का मुजाहिरा किया। बच्चों ने पाक फौज के जवानों के हमरा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि शहरियों का कौमी जज्बा और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत दीद नहीं रही। ज़ाफ़रान मयामी की ये रिपोर्ट देखिए। टांग में यौम अज़्म और इस्तेहकाम मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर
محکمہ اسپورٹس کے تعاون سے ٹانگ میں نمائشی میچ کا انعقاد کیا گیا۔ میچ ڈی ایف اے ٹانگ اور ڈی ایف اے ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان کھیلا گیا، جس میں ٹانگ نے دلچسپ مقابلے کے بعد 2 گول سے کامیابی حاصل کی۔ میچ کے مہمان خصوصی سیکٹر کمانڈر ایف سی ساؤتھ تھے، جنہوں نے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کہ ہماری افواج پاکستان جو الحمدللہ دنیا کی تربیت یافتہ فوج ہے، اس نے اپنے آپ سے کئی گنا بڑے دشمن کو ایک زبردست قسم کی شکست دی۔ ہمارے کے حق انسانیت کو بچانے کا ایک ایکشن تھا، ہمارے کے حق قومی اتحاد کا ایک نمونہ بن چکا ہے۔ سب نے ایک ہی قدم پہ قدم شانہ بشانہ اپنے پاک فوج کے ساتھ اپنے قوم کی دفاع، اسلام کی دفاع اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے اور امن کو لانے کے لیے عہد کے ساتھ آگے چلنا ہوگا۔ ملک بھر میں عوام کا مارکہ حق کا جشن منانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب اپنے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ زعفران میانی، پی ٹی وی نیوز، ٹانک۔ بارسلونا نے 29ویں مرتبہ لا لیگا ٹائٹل جیت لیا۔ بارسلونا میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹیم نے روایتی حریف ریال میڈرڈ کو 2-0 سے شکست دے کر 3 میچز قبل ہی ٹائٹل یقینی بنایا۔ بارسلونا کی طرف سے مارکس ریشفورڈ اور فیرن ٹورس نے 1-1 گول کیا۔ چیمپئن شپ سٹینڈنگز پر بارسلونا کو نزدیک ترین حریف ریال میڈرڈ پر 14 پوائنٹس کی ناقابل تسخیر برتری حاصل ہے۔ ٹائٹل جیتنے پر بارسلونا کے شائقین نے سڑکوں پر نکل کر بھرپور جشن منایا۔ سعودی پرو لیگ میں الاتحاد نے زیمک ایف سی کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے دی ہے۔ جدہ میں کھیلے گئے میچ میں الاتحاد نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے کامیابی حاصل کی۔ کھیل کے 24ویں منٹ میں حسام عوار نے موسیٰ دیابی کے پاس پر گول کر کے الاتحاد کو برتری دلائی۔ 73ویں منٹ میں زیمک کے یاکوویٹے نے مقابلہ برابر کیا اور سٹاپیج ٹائم میں بطور متبادل میدان میں آنے والے عبد الرحمان نے فیصلہ کن گول کر کے الاتحاد کو فتح دلائی۔ زیمک ایف سی کی ٹیم ریلیگیشن کے خطرے سے دوچار ہے۔ اسپین کے جارج مارٹن نے موٹر سائیکل روڈ ریسنگ چیمپئن شپ کی فرینچ گراں پری اپنے نام کر لی ہے۔ لیمانس فرانس میں ہونے والی ریس میں جارج مارٹن نے 7ویں پوزیشن سے آغاز کیا، لیکن آخری لمحات میں زبردست کم بیک کیا اور فنش لائن سے 3 لیپس قبل اٹلی کے مارکو بزیکی کو پیچھے چھوڑ کر 2024 کے بعد اپنی پہلی موٹو جی پی فتح حاصل کی۔ مارٹن نے مقررہ لیپس 41 منٹ اور 18 سیکنڈ میں مکمل کیے۔ مارکو بزیکی 477 سیکنڈ کے فرق سے دوسرے اور جاپانی رائڈر آئی اگوارا 874 سیکنڈ کے فرق سے تیسرے نمبر پر رہے۔ اس کامیابی کے بعد جارج مارٹن رائڈرز چیمپئن شپ میں ٹیم میٹ مارکو بزیکی سے صرف 1 پوائنٹ پیچھے رہ گئے ہیں۔ عالمی نمبر 3 جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو اور ناروے کے کیسپر روڈ اٹیلین اوپن کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ روم میں جاری اے ٹی پی 1000 کے راؤنڈ آف 32 میں زیوریو نے بیلجیم کے الیگزینڈر بلاکس کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ زیوریو نے 6-1 اور 6-4 سے مقابلہ اپنے نام کیا۔ لاسٹ 16 میں زیوریو کا مقابلہ اٹلی کے لوسیانو دا ڈیری سے ہوگا۔ ناروے کے کیسپر روڈ نے جمہوریہ چیک کے جیری لجکا کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-3 اور 6-4 سے ہرایا۔ پری کوارٹر فائنل میں کیسپر روڈ مقامی کھلاڑی لورینزو میسیٹی سے ٹکرائیں گے۔ اور سپورٹس نیوز کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ پی ٹی وی نیوز پر یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔